Hello students, today we learnt about water resources. We know that firstly life began from water on the earth. Without water there is no life. In India, most water supply fulfill from rain. So main resources of water on the earth is rain. पृथ्वी पर जल पृथ्वी की उत्पत्ति हम जानते हैं कि जल से ही हुई है और पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है. We know that 3/4 of the earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be put to use. हम जानते हैं कि 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है पृथ्वी का, परंतु स्वच्छ जल जिसे हम प्रयोग करते हैं वो बहुत ही कम है. This fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. All water moves within the hydrological cycle, ensuring that water is a renewable resource. जल पुनः आपूर्ति या रिन्यूएबल संसाधन है. 96.5% of the total volume of world's water is estimated to exist as oceans and only 2.5% as fresh water. जो जल इस पृथ्वी पर पाया जाता है उसका 96.5% भाग सागर में है. केवल 2.5 भाग स्वच्छ जल पाया जाता है. The total renewable water resources of India are estimated at 1,897 square kilometer per annum. हम इस जल को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं. We find water from ponds, tube well, canal and river. River in India, there is 2 types of river, Himalayan river and peninsular river. हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और पठारों से निकलने वाली नदियाँ. इन जल के स्रोतों से प्राप्त जल को हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं. We use waters in daily lives for producing crop as a irrigation purpose, for washing clothes, for cooking foods, for drinking and so many other ways. Population increase, but water resources are few and it is shrink. So it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. The moment
we speak of water shortage, it relates to the fresh water. जो हम जल की दुर्लभता के संबंध में बात करते हैं, वो जल की दुर्लभता स्वच्छ जल की दुर्लभता से संबंधित होता है। फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्रिपरेशंस, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर, जो हमें ग्राउंड वाटर से यानी जमीन से प्राप्त होता है। वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपुल। यद्यपि स्वच्छ जल की कमी है, परंतु जैसा कहा जाता है, गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है, आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, परंतु किसी भी एक व्यक्ति की लालच को पूरा करने की क्षमता नहीं है। इसी प्रकार जल के संबंध में भी कहा जाता है कि वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपुल। जल लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, बट द एरिया स्टिल सफर्स फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। This scarcity may be due to bad quality of water. Lately, there has been growing concerns that even if there is ample water to meet the needs of the people, much of it may be polluted by domestic and industrial wastes, chemicals, pesticides, and fertilizers used in agriculture, making it hazards for human use। यानी जो हम घरेलू कचरे, औद्योगिक कचरे, खेती में यूज होने वाले फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, इन सब से जो फ्रेश वाटर है वो पोल्यूटेड हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें जल का उचित प्रबंधन करना चाहिए। We have already realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resources। हमें अपने जल के स्रोतों को प्रबंध ठीक ढंग से करना चाहिए, उसे संरक्षित करना चाहिए। टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ, जिससे हम स्वस्थ रहें फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड्स। To ensure food security, continuation of our livelihoods and productive activities, and also to prevent degradation of our natural ecosystem। हमारा जीवन ठीक ढंग से चलता रहे, हमारा उत्पादन होता रहे और पर्यावरण जो है वो भी स्वच्छ रहे। इस दृष्टि से हमें जल के संरक्षण का प्रबंध करना चाहिए। आवर एक्सप्लॉटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज विल impoverish these resources and cause ecological crises that may have profound impact on our lives। Students, today we learnt about water resources, scarcity of water and water management। आज हमने जल क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, इसकी दुर्लभता क्या है, इसका हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए, इस संबंध में पढ़ा है। नेक्स्ट स्टेप पर हम जल से संबंधित अन्य जानकारी पढ़ेंगे। आज इसको पढ़िए और इससे संबंधित नोट्स बनाइए। यदि कहीं समस्या आती है तो पुनः प्रश्न करके उस समस्या को दूर करिए। थैंक यू।